Good morning, class. Our next topic is implicit declaration on page number 16. तो implicit declaration के बारे में मैंने पहले अभी आपको बताया था. सेम वही कंसेप्ट है कि हम किस लिए यूज करते हैं implicit declaration. तो देखो, Fortran 77 did not require variables to be explicitly declared. It was implicitly assumed that any variable name starting with IGKLMN was an integer, and a variable name starting with any of the other letters in the alphabet real, not requiring the declaration of variable before their use led to serious error in Fortran 77 program which are very difficult to detect. ठीक है कि Fortran 77 में हम क्या करते थे, वेरिएबल्स को इम्प्लिसिटली डिक्लेयर नहीं कराते थे, वे एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर होते थे. मींस आईजे के एलएमएन को इंटीजर कंसीडर करते थे और बाकी किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले वेरिएबल को रियल. ठीक है, पर वो कभी कभी क्या होता था, इंटरनली उसमें एरर शो कर देता था. Thus Fortran 90 designer wanted to declaration of variables to be compulsory and in their language such as C and Pascal, but this was not enforced as old Fortran 77 programs had to be accepted by Fortran 90 compiler. In other words, it was decided that Fortran 77 should be a subset of Fortran 90. Thus, all syntax rules has to be honored. Thus, if by mistake a Fortran 90 programmer forgot to declare a variable, the compiler will not detect it and give a default type based on the first letter of the name. To ensure that this mistake does not happen, it is advised that all Fortran 90 programs must have the statement implicit none. इसको रिमूव करने के लिए क्या किया गया कि हम implicit none यूज करेंगे ताकि वो एरर शो कर दे अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा रहे हैं. Before declaring variables, in this book we will put implicit none at the beginning of every program before variables are declared. The statement implicit none informs the compiler that no variable name has a default type. Thus, it is compulsory to declare the type of each variable used in the program. If it is not done, the Fortran 90 compiler will signal a syntax error. ठीक है, तो ये आपका implicit declaration का concept था. नेक्स्ट है नेम्ड कांस्टेंट. क्या होते हैं नेम कांस्टेंट? मीनिंग से पता चल रहा होगा आपको कि अगर कोई कांस्टेंट है उसको हम कोई नेम दे देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेम्ड कांस्टेंट. जैसे आपका पाई होता है, पाई 3.14 है. अगर मैं क्या करूं, पाई इज इक्वल टू 3.14 लिख दूं तो ये क्या बन जाता है, नेम्ड कांस्टेंट. की इसका नेम क्या हो गया, पाई. ठीक है, अब देखो ये मतलब इसको हमने किस लिए यूज करते हैं इसको, कि कभी कभी क्या होता है कि आप पाई यूज कर रहे हो, बहुत लेंथी प्रोग्राम है, आप क्या करते जा रहे हो, बहुत सारी जगह पर आपको पाई लिखना पड़ गया. जैसे यहाँ पर अगर आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ गई, ठीक है, मतलब 3.14 आपने यूज किया, अगर आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी तो आपको जहां जहां भी आपने यूज किया होगा सारी जगह पर चेंज करनी पड़ेगी. तो वो बहुत क्या हो जाएगा, लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए हम क्या करते हैं, एक नेम दे देते हैं उस कॉन्स्टेंट को, ताकि हम अगर उसकी वैल्यू चेंज करनी पड़े तो यहां पर चेंज हो, बाकी सारे प्रोग्राम में हम ये नेम यूज करेंगे, बस वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो इसकी डिफाइन देखो, अ कांस्टेंट अपीयरिंग एज इट इज इन अ प्रोग्राम डज नॉट कन्वे एनी मीनिंग रिगार्डिंग टू इट्स पर्पस और रोल टू द प्रोग्रामर. इट इज अट्रैक्टिव टू एसोसिएट एन आइडेंटिफायर और नेम विद द कांस्टेंट एंड यूज दिस नेम इंस्टेड ऑफ द न्यूमेरिकल कांस्टेंट. कि हम उसको कोई नेम दे देंगे या आइडेंटिफायर भी बोल सकते हो आप, इंस्टेड ऑफ यूजिंग न्यूमेरिक कांस्टेंट यूज करने की बजाय. फॉर एग्जाम्पल, इफ द कांस्टेंट पाई अपीयर्स in many places in the program, it is better to call it pi rather than use its value everywhere. And another situation where it is preferable to use a name rather than a value is when a quantity such as minimum balance is given a value which does not change in the program. Suppose it is say 500. Then if the constant 500 is used everywhere, its meaning will not be obvious to a person who read the program. Means अगर हम minimum balance एक यूज कर रहे हैं 500, तो बहुत सारी जगह पर हम 500 यूज कर रहे हैं. अगर हम इसको मिनिमम बैलेंस नेम दे दे तो हमारे लिए यूज करना इजी हो जाएगा. फर्दर इफ द वैल्यू इज चेंज्ड फॉर सम रीजन टू सेव 750, वन हैज टू चेंज 500 to 750 एट ऑल प्लेसेस. कि अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर रहे हो सारी जगह पर और आपको चेंज करना पड़ जाए 750 में उसको, तो आपको सारी जगह पर चेंज करना पड़ेगा. फर्दर इफ द वैल्यू ऑफ
changes for some reason further at all places there is possibility of missing some and this will lead to incorrect program। तो इससे क्या हो जाएगा आपका कि कहीं कहीं पर आपको क्या हो सकता है कि जब आप वैल्यू चेंज कर रहे हो कहीं आप भूल जाओ चेंज करनी तो वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी डिफाइन आप अपने वे में भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा, अब नेम्ड कांस्टेंट जहां भी यूज करोगे उसके लिए सिंटैक्स क्या होगा। सबसे पहले तो सिंटैक्स क्या है आपका, टाइप की इंटीजर टाइप उठा रहे हो, रियल टाइप, कोमा पैरामीटर PARAMETER, ठीक है। टाइप कोमा पैरामीटर डबल कोलन लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड बाय कोमा, ये सिंटैक्स होता है। मतलब जहां पर भी नेम्ड कांस्टेंट यूज करोगे वहां पर पैरामीटर यूज होता है टाइप के साथ, ठीक है। ये सिंटैक्स हो गया आपका। एग्जाम्पल, रियल कोमा पैरामीटर पाई इज इक्वल टू 3.1415926। तो जहां भी आपको पाई यूज करना होगा वहां पर आप क्या यूज करोगे, PI, इस वैल्यू के प्लेस पर। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीजर कोमा पैरामीटर मिनिमम बैलेंस इज इक्वल टू 500। जहां पर भी आपको 500 यूज करना होगा वहां आप ये वर्ड यूज करोगे, ठीक है। तो अगर आपको चेंज करना पड़ जाए 750 तो आप क्या करोगे, 500 के प्लेस पर यहीं पर 750 चेंज कर दोगे, ठीक है। Where the constant pi is to be used, we use the name pi, and wherever minimum balance of 500 is to be used, we use the name minimum balance. If the value of minimum balance is to be changed to 750, then the parameter statement is changed to this। मतलब हम यहीं पर चेंज कर देंगे तो पूरे प्रोग्राम में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। This will automatically assign 750 to minimum balance whenever it occurs. A value cannot be assigned to the name यूज टू रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट इन अ प्रोग्राम, ठीक है। जो भी हम कांस्टेंट ले रहे हैं उसको हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ठीक है, वो फिक्स होता है पहले। दिस विल डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ नेमिंग अ कांस्टेंट। द कंपाइलर विल सिग्नल एन एरर इफ अ अटेम्प्ट इज मेड टू असाइन अ वैल्यू टू इट। टू समराइज, वी यूज पैरामीटर स्टेटमेंट टू गिव अ नेम टू अ कांस्टेंट, देन द कांस्टेंट इज यूज्ड इन मेनी प्लेसेस इन अ प्रोग्राम। मीनिंगफुल नेम फॉर अ कांस्टेंट वुड एड इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम। अब आपके पास अगर एग्जाम में नेम्ड कांस्टेंट का टॉपिक आ जाता है, पहले आप डिफाइन लिखोगे, फिर उसका सिंटैक्स लिखोगे, ठीक है। उसके बाद उसका छोटा सा एग्जांपल दोगे, फिर उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम का एग्जांपल दोगे, ठीक है। अब इसके लिए जो प्रोग्राम होगा आपका वो एरिया ऑफ सर्कल हो सकता है। तो एरिया ऑफ सर्कल का मैं आपको प्रोग्राम बता देती हूँ कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें पाई यूज होगा आपका। देखो, एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया क्या के लिए फॉर्मूला πr² यूज करते हो, पेरीमीटर के लिए 2πr, ठीक है। प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे हम। प्रोग्राम हो गया हमारा, हमने नेम दे दिया एरिया सर्कल, बीच में अंडरस्कोर डाल देना क्योंकि स्पेस तो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होती है, इम्प्लिसिट रन। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन। आपको क्या क्या चाहिए कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले में, दोनों में आर हमारा वेरिएबल है, बाकी तो कांस्टेंट है। ए और पी में वैल्यू असाइन डलेगी हमारी कैलकुलेशन के बाद। इसका मतलब हमें 3 वेरिएबल चाहिए, आर, ए और पी, ठीक है। उसके बाद पाई जो है हमें नेम्ड कांस्टेंट लेना है, रियल कोमा पैरामीटर क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू दिस। अब मैं जहां भी पाई यूज करूंगी वहां पर ये वैल्यू ना यूज करके ये पाई यूज करूंगी। सबसे पहले आर को रीड कराना है, एंटर द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करो, एरिया के लिए πr², पेरीमीटर के लिए 2πr। लास्ट स्टेप क्या होता है, इसको प्रिंट करा देना है, एरिया इज इक्वल टू ए, पेरीमीटर इज इक्वल टू पी। यही सिंटैक्स होता है, ऐसे ही कराते हो। और लास्ट में प्रोग्राम को एंड कर देना, एंड प्रोग्राम एरिया सर्कल। ये इससे रिलेटेड आपका प्रोग्राम हो जाता है। और भी आपको एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आप दे सकते हो एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जैसे 2πr(h) दे सकते हो ये, ठीक है। और वॉल्यूम वगैरह 1/3πr²h, कुछ भी मतलब जिसमें नेम्ड कांस्टेंट आपने यूज करना हो। मिनिमम बैलेंस का कुछ दे सकते हो आप एग्जांपल, कुछ भी दे सकते हो। इसमें आपका ये हो जाता है एग्जांपल, ये दे सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो है, यहां तक आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। और हाँ, आपको बेटा ये भी ध्यान रखना है कि जब भी चैप्टर खत्म होता है उसके बाद आपकी समरी गिवन होती है। समरी में क्या होता है, इसका पूरे चैप्टर का कंक्लूजन होता है। तो आपको ये इसके पॉइंट्स भी पढ़ते रहना है, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन में ये काम आ जाते हैं कि इनमें से कोई ना कोई अटेम्प्ट हो जाता है आपका, ठीक है। तो वो पढ़ना है आपने जरूर हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। क्या होती हैं अर्थमेटिक मीनिंग,
क्या होगा, अर्थमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, यही चलेंगे हमारे पास ऑपरेटर। इसमें एक्सप्रेशन मींस ऑपरेटर्स और ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन, बट ऑपरेटर्स कैसे यूज होंगे, अर्थमेटिक मींस प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ठीक है, ये यूज होंगे। तो देखो इसमें क्या क्या है हमारे चैप्टर में, हाउ टू फॉर्म अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यूजिंग इंटीजर वेरिएबल, रियल वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, various arithmetic operators, their precedence when they operate on variable, and rules of associativity among operators of equal precedence, the assignment operator, assignment statement and their use, ठीक है। सबसे पहले इसकी डिफाइन क्या होती है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। An arithmetic expression is a series of variable names and constants connected by the arithmetic operations symbols, namely addition, subtraction, multiplication, division and exponentiation। यहाँ तक आपकी डिफाइन हो जाती है, डेफिनेशन हो जाती है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की। उसके बाद एग्जांपल दोगे, एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हो जैसे a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, ये आपका एग्जांपल हो जाता है, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है हमारी। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम द एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल नेम्स आर यूज्ड टुगेदर विद द ऑपरेशन सिंबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। In this chapter, we will discuss the syntax rules for writing arithmetic expression and rules followed by Fortran 90 to evaluate them, ठीक है। अब पेपर में अगर आपका आता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का टॉपिक, तो आप ये डिफाइन लिखोगे यहाँ तक, ठीक है, एक एग्जांपल दोगे। उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या होती है, वो टेबल बना के आप एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक इंटीजर एक्सप्रेशन होती है आपकी, एक रियल एक्सप्रेशन होती है, 2 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ तक आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का कंप्लीट हो जाएगा। तो अब पहले डिफाइन होगी, एग्जांपल हो गई, उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, किसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स आप यूज करते हो, ये टेबल होती है। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और एक्सपोनेंशिएशन मींस पावर के लिए आप डबल स्टार यूज करोगे, ठीक है। द अर्थमेटिक ऑपरेशन सिंबल यूज्ड इन Fortran 90 एंड देयर मीनिंग आर गिवन इन दिस टेबल। The symbol माइनस इज यूज्ड फॉर बोथ यूनरी माइनस एंड सब्ट्रैक्शन, की माइनस जो है यूनरी माइनस के लिए भी यूज करोगे और सब्ट्रैक्शन के लिए भी। अब यूनरी माइनस देखो, अगर मैं क्या करती हूँ, माइनस a प्लस बी लिखती हूँ, तो यहाँ पर माइनस अगर आगे आ गया तो ये यूनरी बन जाता है, तो मतलब पहले यही ऑपरेट होता है सबसे पहले। अगर वो बीच में आ जाता है तो वो सिंपल माइनस कंसीडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ऑपरेशन की दोनों वे में यूज होगा। इन द एक्सप्रेशन माइनस ए प्लस बी द सिंबल माइनस सिंबल इज अ यूनरी माइनस, दैट इज इट इंडिकेट्स दैट द नेगेटिव ऑफ ए इज टू बी टेकन इन द एक्सप्रेशन a माइनस बी, देन हाउएवर द सिंबल माइनस इंडिकेट्स अ बाइनरी माइनस और सब्ट्रैक्शन। ये टेबल है आपकी। द ऑपरेटर डिवीजन फॉर इंटीजर गिव्स द इंटीजर क्वोशिएंट आफ्टर डिवीजन, thus if we write 7 divided by 3 the answer would be 2. Observe that the integer division the result is an integer, the remainder after division is ignored। मीन्स अगर आप क्या कर रहे हो, इंटीजर उठा रहे हो वैल्यूज डिवाइड करते टाइम, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो भी आपका इंटीजर उठाएगा। जब आप 3 से 7 को डिवाइड करोगे तो पॉइंट समथिंग जो भी आएगा तो वो पॉइंट वाली वैल्यू को इग्नोर कर देगा, वो सिर्फ इंटीजर पार्ट उठाएगा। अगर आप रियल में उठा रहे हो कि 7.0 डिवाइडेड बाई 3.0, तो वो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू उठाएगा, ठीक है। तो अगर इंटीजर डिवीजन कर रहे हो तो इंटीजर, रियल डिवीजन कर रहे हो तो रियल वैल्यू देगा। तो आप जब पेपर में अटेम्प्ट करोगे तो पहले डिफाइन हो जाएगी इसकी, एग्जांपल हो जाएगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं और मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, उनको टेबल बनानी है पहले, फिर एक करके आपको एक्सप्लेन कर देना। जैसे प्लस उठाओगे, प्लस इज यूज्ड फॉर टू ऐड टू क्वांटिटीज, एग्जांपल दे देना ए प्लस बी हो गया जैसे। फिर माइनस उठाओगे, माइनस इज यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट 2 क्वांटिटीज, फिर उसका एग्जांपल दे देना है ए माइनस बी हो गया। फिर ऐसे मल्टीप्लीकेशन का, ऐसे ही डिवीजन का। फिर टाइप्स लिखोगे आप कि टाइप्स होते हैं आपके। इंटीजर एक्सप्रेशन क्या होती है, इंटीजर एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल नेम्स डिक्लेयर्ड एज इंटीजर और इंटीजर कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर विद सिमिलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग आर इज इंटीजर एक्सप्रेशन। अब वही है कि जब आप इंटीजर वेरिएबल्स को कॉन्स्टेंट को कनेक्ट करके कोई एक्सप्रेशन बनाओगे तो वो इंटीजर एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसके वैलिड और इनवैलिड एग्जांपल आपने देने हैं। वैलिड एग्जांपल ये हो गए सारे, मैंने इंटीजर में ये उठाए और ये वेरिएबल उठाए, ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी आप ऑपरेशन लगा कर दे सकते हो। इनकरेक्ट में इंटीजर में मैंने ये उठाए a माइनस बी प्लस जे तो मैंने डिक्लेयर ही नहीं कराया इंटीजर में। a माइनस 4.0 रियल हो गया, वो इंटीजर नहीं हुआ। तो ऐसे आप इनकरेक्ट एक्सप्रेशन बना सकते हो। ऐसे रियल क्या होती है,
रियल एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग वेरिएबल नेम्स डिक्लेयर्ड एज रियल और रियल कांस्टेंट आइडेंटिफाई। इसमें आप रियल यूज करोगे। जैसे मैंने रियल में ये उठाए और ये वेरिएबल उठाए, तो ऐसे ऑपरेशन लगाकर मैंने दिखा दिया। इनकरेक्ट एग्जांपल के लिए मैंने रियल में ये उठाए तो x माइनस जेड प्लस डी, डी तो मेरा यहाँ डिक्लेयर ही नहीं है रियल में, x प्लस वाई p प्लस जेड, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का सिंबल नहीं है, ठीक है। n इंटू जे, यहाँ डॉट है, ठीक है। ऐसे या फिर आप एक इंटीजर डिक्लेयर करा के वहां पर दे सकते हो इनकरेक्ट बना के, ठीक है। तो ये आपका रियल एक्सप्रेशन होती है। मतलब पूरा अटेम्प्ट कैसे होगा, पूरा क्वेश्चन पहले डिफाइन होगी, फिर उसके एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। डिफाइन के बाद एग्जाम्पल, फिर उसके ऑपरेटर्स आएंगे कौन कौन से होते हैं, फिर उसके टाइप्स में इंटीजर और रियल, इनके वैलिड और वैलिड एग्जाम्पल, इसके भी वैलिड और इनवैलिड एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। Fortran 90 allows mixing integer and reals in the expression. Such a facility is useful particularly as errors such as writing 2 into a when 2.0 into a was included is common, and earlier Fortran compiler would reject this. This facility of mixing real and integer mode should be used carefully and is not recommended to beginners. ठीक है, मतलब हम इसमें क्या करते हैं, रियल और इंटीजर्स को मिक्स भी कर सकते हैं एक्सप्रेशन में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं इसका। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।